डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सरमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ पैसेज टू इंडिया बाय ई एम फॉस्टर। Basically this novel by Foster has been divided into three parts. The first part is named The Mosque, the second is The Cave or Marabar Caves, and the third part is The Temple. But for the better understanding and to divide the entire lecture into different parts, for my students, I have divided this novel into 40 chapters. So the first video will be based on chapter number 1 to 10, then chapter 11 to 20, and so on till chapter 40. So let's begin. First of all, we must be aware about a brief biography of E.M. Foster. E.M. Foster's complete name is Edward Morgan Foster. He was born in 1879 and he died in 1970. He was an English novelist, essayist, and short story writer, renowned for his keen social insight and exploration of class, culture, and human relationships. So basically, ये एक modern writer है, इंग्लैंड में पैदा हुआ और इसकी जो नॉवेल्स हैं उसमें क्लास सोशल क्लासेस का जिक्र है, हमें कल्चर का एलिमेंट और थीम देखने में मिलता है और ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे ये बात करता है। सो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स है ये अर्ली 20th सेंचुरी का। फॉस्टर्स के जो वर्क्स हैं दे ऑफन डेल्व इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर or the tensions between individuals and society and the conflict between personal desires and social expectations. फॉस्टर जो है वो लंदन में पैदा हुआ है। फॉस्टर एक रिलेटिवली प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, लेकिन he was deeply affected by personal and family hardships, including the early death of his father. छोटी उम्र में he was very young when his father died, and his mother's emotional coldness. He used to face it as well. So he attended the prestigious Tonbridge School and later King's College, Cambridge. So he was a Cambridge graduate, where he developed his love for literature and began to shape his views on society. So at Cambridge, he began to shape his views on society and human nature. It was Cambridge that he forged lifelong friendships with other literary figures. इसके बाकी भी जो राइटर्स वगैरह थे उस वक्त के अदीब थे, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छे मरासम थे, दोस्तियां थी। फॉस्टर के अगर हम कामों की तरफ बात करें तो इसका सबसे फेमस काम है अ रूम विद अ व्यू, जो शुरू में इब्तदाई इसके कामों में शामिल है। 1908 में इसने पब्लिश किया। ये कमिंग ऑफ एज नॉवल है ल्यूसी हनीचर्च के बारे में और उसकी जर्नी के बारे में। उसके बाद होवर्ड्स एंड इसने लिखा, 1910 में पब्लिश हुआ। इट्स अ नॉवल अबाउट द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लासेस एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन लाइव्स। Then the famous A Passage to India was published in 1924. So this is a novel which we are going to discuss it in detail as well. It's set against the backdrop of British colonial rule in India. So this novel explores racial tensions, friendships and cultural misunderstandings. तो ये नॉवल जो है बेसिकली ये ब्रिटिश इंडिया के बारे में है। हमें पता है कि 1857 से 1947 तक it was a colonial rule of British Empire. Before that, they came into India. They came in India as is East Indian Company, as merchants or traders, but the colonialism properly started after the decline or following the decline of the Mughal Empire in 1857. जब बहादुर शाह जफर को इन्होंने कैद कर लिया था तो उसके बाद प्रॉपरली एक कॉलोनियलिज्म हमें देखने को मिलता है इंडिया में। फोस्टर्स की जो राइटिंग है दे आर ऑफन मार्क्ड बाय हिज कंसर्न विद द मोरल एंड इमोशनल लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये इंडिविजुअल्स इसके कामों में आपको इंडिविजुअलिटी नजर आएगी, उनकी इमोशनल लाइव्स क्या हैं, अफरादियत नजर आएगी आपको इसमें कि इंडिविजुअल्स की इमोशनल लाइव्स कैसी हैं, मोरल लाइव्स कैसी हैं, फिर ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर जो क्लास डिविजन्स हैं वो कैसी हैं, फिर जो डिफिकल्टीज ऑफ अचीविंग जेन्युइन पर्सनल कनेक्शंस इन एन इंक्रीजिंगली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड इम्पर्सनल वर्ल्ड। तो ये हमें इन चीज़ों में देखने को मिलती है। इसके अलावा अब अ पैसेज टू इंडिया है, इसमें कल्चरल क्लैश भी हमें देखने को मिलेगा, एलिनेशन का एलिमेंट भी देखने को मिलेगा और इसके साथ-साथ कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन इमोशंस भी हमें
देखने को मिलेंगे। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं हम नॉवल को, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ऑल्दो फोस्टर जो है वो अपने आप को पॉलिटिकल नहीं कहता, लेकिन वो पॉलिटिकल इश्यूज को, सोशल इश्यूज को डिस्कस करता है अपने नॉवेल्स के ज़रिए, अपनी राइटिंग्स में। तो नॉवल का आगाज़ जो होता है वो होता है चंद्रपुर से। द नॉवल ओपन्स विद अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रपुर। चंद्रपुर जो है वो एक फिक्शनल टाउन है ब्रिटिश रूल्ड इंडिया में। इस टाउन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा है जहाँ पे ब्रिटिश रह रहे हैं, जो एक हिल की तरफ है, और दूसरा जो है वो पॉवर्टी स्ट्रिकन इंडियंस रह रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन रहती है, जो क्राउडेड एरिया है, डर्टी इंडियन क्वार्टर्स को दिखाया गया है। तो इट सिंबलाइज द ब्रिटिश एरिया लोकेटेड ऑन अ हिल। ये असल में सिंबलाइज करते हैं द फिजिकल एंड सोशल डिवाइड बिटवीन द कॉलोनाइजर्स एंड द कॉलोनाइज्ड। के अच्छा, जो कॉलोनाइजर्स थे उनके पास एक अच्छा एरिया है, और कॉलोनाइज्ड के पास जो है वो एक बदतरीन किस्म का इलाका उनको दिया गया है। और ये जो पूरा लैंडस्केप है चंद्रपुर का, इंक्लूडिंग द मिस्टीरियस मैराबर केव्स, ये हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। They sets the tone for the novel's exploration of the cultural and racial separation between the British and the Indians. तो शुरू में बेसिकली राइटर जो है ही इज सेटिंग द सीन टू द रीडर्स कि कहाँ पे ये कहानी जो है, किस वक्त में, किस टाइम पीरियड में, किस सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन के दौरान ये कहानी जो है वो पेश आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर है इस नॉवल के अंदर वो है डॉक्टर अजीज। और डॉक्टर अजीज की दुनिया, डॉक्टर अजीज का वर्ल्ड हमें देखने को मिलता है। रीडर्स, दे आर इंट्रोड्यूस्ड टू डॉक्टर अजीज। ही इज अ यंग चार्मिंग मुस्लिम इंडियन physician or a doctor. He feels frustrated and marginalized by the British ruling class, and particularly by their dismissive attitudes toward Indians. तो ये पसंद नहीं करता कि ब्रिटिश हमें किस तरीके से पसंद करते हैं, हमें इन्फीरियर समझते हैं। ड्यूरिंग अ डिनर विद हिज फ्रेंड्स, मतलब इस चैप्टर में हमें इसके दोस्तों का भी पता चलता है डॉक्टर अजीज का, कि अजीज की कंपनी कैसी है। इसका एक दोस्त है हमीदुल्ला, एक दोस्त है महमूद अली। ये सारे आपस में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं, और बात का इनका मौजू क्या होता है कि क्या ब्रिटिश और इंडियंस की दोस्ती जो है वो पॉसिबल है कि नहीं, क्या कोई ब्रिज इनके दरमियान क्रिएट हो सकता है कि नहीं। तो इसमें इसका एक दोस्त जो है वो ये बात करता है कि भाई ये चीज़ इंग्लैंड में तो पॉसिबल हो सकती है, लेकिन इंडिया में पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि इंग्लैंड में ये चीज़ इसलिए पॉसिबल हो सकती है कि वहाँ पे इनके नज़दीक, बकौल इनके, कि वहाँ पे प्रेजुडिस नहीं है। ये प्रेजुडिस जो भी है हम लोगों के लिए है यहाँ पर। तो अगर हम दोस्ती करना भी चाहते हैं इनके साथ, तो रिलेशनशिप बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट इज पॉसिबल इन द वेस्ट, बट नॉट इन द ईस्ट। फिर हमने देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में हमें मिसेस मोर का एक कैरेक्टर मिलता है। ये एक एल्डरली वुमन है। दो इनके हस्बैंड्स थे, उनकी डेथ हो जाती है, मतलब कि ये विडो हैं। और एक रिस्पेक्टेड लोकल ब्रिटिश मजिस्ट्रेट, सॉरी, लोकल जो ब्रिटिश मजिस्ट्रेट है उसकी वालदा हैं। ऑल दो जो मजिस्ट्रेट है, जो यहाँ पर चंद्रपुर का जो मजिस्ट्रेट है, सिटी मजिस्ट्रेट, उसका नाम है रोनी हेस्लॉप। तो रोनी हेस्लॉप की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो है एक रिस्पेक्टेड लेडी है। मिसेस मोर एक ग्रेसफुल खातून है। मिसेस मोर के साथ इनकी मुलाकात जो है वो कैसे होती है डॉक्टर अजीज के साथ, ये भी मैं आपको थोड़ा सा इंसिडेंट बता देता हूँ। कि चैप्टर नंबर 2 में ही हमें देखने को मिलता है कि अभी अजीज अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, तो इसका एक सुपीरियर है जिसका नाम है मिस्टर कैलेंडर। तो मिस्टर कैलेंडर जो है वो इसको बुलाता है, ये हॉस्पिटल में इसका फिजिशियन है, इसका सीनियर है, और सुपरवाइजर आप कह लें। तो वो इसको बुलाता है, और जब ये वहाँ पे पहुँचता है तो जिस टांगे में बैठ के जाता है, तो वो रास्ते में कहीं खराब हो जाता है आई थिंक, तो ये लेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो इसको पता चलता है कि मिस्टर कैलेंडर ने, ये इतनी दूर उनके पास जाता है मिलने के लिए, तो मिस्टर कैलेंडर वहाँ पर मौजूद नहीं होते। तो ये बड़ा जो है ना, ये कहता है कि भाई ब्रिटिश एटीट्यूड्स के ये पहले बहुत अगेंस्ट बात करता है। और इसको ये जो बहुत जो है मायूस होता है उस बात पे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, गुस्सा आता है इसको। तो ये कहता है कि भाई अब मैं, ये वहाँ से निकल आता है, रात का टाइम होता है, ये अपनी फेवरेट मॉस्क में जाना चाह रहा है, उधर एक मस्जिद है एक, वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे इसकी मुलाकात जो है वो मिसेस मोर से हो जाती है। तो मिसेस मोर, हम अब स्लाइड को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रोनी हेस्लॉप की मदर है। शी अराइव्स इन चंद्रपुर विद एडिला क्विस्टेड, अ यंग ब्रिटिश वुमन। Mrs. Moore and Adela are now to India, new to India and hold more open-minded views compared to other British colonials. तो जो ब्रिटिश एक माइंडसेट है इंडियंस के बारे में, बड़ा कि ये इंफीरियर्स हैं, ये बड़े बारबारिक हैं, और ये अनसिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स हैं, और वो इनको इनह्यूमेन मैनर में ट्रीट करते हैं। बिल्कुल भी इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इनकी रेपुटेशन नहीं है यहाँ पे।
तो कंट्ररी टू दैट मिसेस मोर और एडिला क्विस्टेड जो है वो इंडियंस के बारे में डिफरेंट सोचती हैं और वो रियल इंडिया देखना चाहती हैं। इस पे हम आगे बात करते हैं। तो वन नाइट मिसेस मोर विजिट्स अ मॉस्क एंड हैज अ चांस इनकाउंटर विद डॉक्टर अजीज। फिर यहाँ पर मुलाकात होती है, इनका पूरा मुकालमा है और डॉक्टर अजीज बड़ा इंप्रेस होता है मिसेस मोर से कि वो इतनी काइंड है, इतनी जेंटल है। तो वो बड़ा इंप्रेस होता है कि एक इंग्लिश वुमेन हो के वो मेरे से इतने अच्छे से बात कर रही हैं, मुझे इतने प्यार से बात कर रही हैं और जो है वो मुझे इतने अच्छे से ट्रीट कर रही हैं। तो डॉक्टर अजीज बिकम्स वेरी अटैच्ड और इनकी एक फ्रेंडशिप का आगाज हो जाता है। तो दे बॉन्ड ओवर देयर शेयर्ड ह्यूमैनिटी एंड रिस्पेक्ट, फॉर्मिंग अ ब्रीफ बट मीनिंगफुल कनेक्शंस। This meeting introduces the theme of potential friendship between Indians and the British, although it will be tested by the realities of colonialism. ये हम आगे जाके देखते हैं कैसे। उसके बाद जो है हमें रोनी हेस्लॉप का कैरेक्टर इसमें मिलता है कि रोनी हेस्लॉप जो है वो मिसेस मोर का बेटा है, सिटी मजिस्ट्रेट है और वो टिपिकल जो है वो ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल है, एरोगेंट है, अथॉरिटेटिव है और इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो एक डिसमिसिव एटीट्यूड है उसका इंडियंस की तरफ। रोनी का जो मानना है वो ये है कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए इंडियंस के ऊपर। इन कंट्रास्ट टू एडिला एंड मिसेस मोर्स, दे आर मोर कंपैशनेट। दे use a compassionate approach, a loving approach to rule, but or to have relationship with Indians। लेकिन ये कहता है कि नहीं, हम लोग इंडियंस की मदद करने के लिए नहीं आए बल्कि हम इनको कंट्रोल करने के लिए आए हैं और इनको जो है वो हमने अपने एक तरह से अपने आप कह लो कि ऑर्डर में, अपने हुक्म में के नीचे इनको दबा के रखना है, ठीक है, ताकि ये सिविलाइज हो सके। तो एक तरह से ये दिखाया गया कि कॉलोनियलिज्म जो है वो एक तरह से एहसान किया जा रहा है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि एक वाइट सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट है था उस वक्त कॉलोनियलिज्म के दौरान, एक जिसको हम वाइट मेंस बर्डन कहते हैं। एक फिलॉसफी है कि भाई वाइट मेंस बर्डन, कि ये भाई वाइट मेंस दे हैव अ बर्डन ऑन देयर शोल्डर्स that they have to civilize the world. It is their responsibility to civilize the world. Except these white people, all the world is uncivilized or barbaric or they are animals. So they are supposed to civilize all of them. तो इसको white man's burden भी कहते हैं, white supremacy भी कहते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है रोनी हेस्लॉप white man's burden की या white supremacy का। एडिला जो है वो इसकी फियांसे है, मिसेस मोर से इसलिए आती है, रोनी से मिलने आती है यहाँ पे। तो ये इसकी फियांसे है रोनी हेस्लॉप की। एडिला एक्सप्रेसेस हर डिजायर टू सी द रियल इंडिया बियॉन्ड द ब्रिटिश कंट्रोल्ड स्फीयर। अब रियल इंडिया क्या है कि ऐसा इंडिया मैं देखूं, उन इंडियंस लोगों से मैं डायरेक्टली जाके बातचीत करूं, मुलाकात करूं, देखूं, जो कॉलोनियल प्रेशर में नहीं है, कॉलोनियल रूल के अंडर नहीं है। हिंटिंग एट हर क्यूरोसिटी एंड आइडियलिज्म, ये एक आइडियलिस्ट लड़की है और एक इसके अंदर एक तजस्सुस है पाया जाता है, क्यूरोसिटी पाई जाती है। तो दिस चैप्टर सेट्स अप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रोनीज रिजिड कॉलोनियल माइंडसेट एंड एडिला's ग्रोइंग डिसइल्यूजनमेंट विद ब्रिटिश रूल। क्योंकि वो समझती थी कि ब्रिटिश तो इधर सिविलाइज करने आए हैं, इनके तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडियंस के साथ, तो वो एक इल्यूजन्स में रह रही थी। शी वाज जस्ट रनिंग आफ्टर द शैडोज। तो यहाँ पर ये आके इसको जब ये रोनी से मिलती है और लोगों को देखती है तो इसको पता चलता है कि ऐसा तो नहीं है। सो शी बिकम डिसइल्यूजन्ड। फिर हम देखते हैं कि एक पार्टी होती है क्लब में, एक क्लब है जहाँ पे सारे ब्रिटिश जो है मौजूद होते हैं, मिसेस मोर, एडिला और ये सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, रोनी भी है। तो ये एक सोशल इवेंट है ब्रिटिश क्लब में। मिसेस मोर और एडिला जो हैं वो एक दूसरे वो अदर मेंबर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल कम्युनिटी उनको मिलती हैं। क्लब मेंबर्स जो हैं वो ओपनली डिस्प्ले देयर रेसिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड इंडियंस। अच्छा, ये ब्रिटिश क्लब में ये ब्रिज पार्टी होती क्यों है? ये ब्रिज पार्टी इसलिए होती है क्योंकि ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल हैं, ब्रिटिश पीपल हैं, ये कहते हैं कि भाई हम कोई एक एक ब्रिज पार्टी क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम इंडियंस को भी बुलाएंगे और जो है हम ब्रिटिश भी मौजूद होंगे। तो ब्रिज पार्टी बेसिकली इट्स आयरॉनिकल। ये मकसद मतलब कि इसका नाम तो ऐसा ही है, नाम से हमें ये देखने को मिलता है कि इट aims to create a bridge of harmony between the east and the west। बट आयरॉनिकली ये ऐसा होता नहीं है। इधर इंडियंस को बहुत रेसिस्ट एटीट्यूड दिखाया जाता है और उनको री किया जाता है एक तरह से कि भाई हम रूलर्स हैं और आप रूल्ड हैं। तो ड्यूरिंग दिस इवेंट इट इज सजेस्टेड दैट अ ब्रिज पार्टी ही हेल्ड टू improve relationships between the British and the Indians, though the British treat the idea with cynicism and suspicion।
The term bridge party is ironic as most British characters have no genuine interest in bridging the cultural gap. Adila becomes increasingly aware of the deep racial and cultural divide that exists in Chandrapur. तो ये ब्रिज पार्टी जो है इसको मिसेस टेल्टन है, मिस्टर टेल्टन की वाइफ। मिस्टर टेल्टन कौन है? वो कलेक्टर है। तो इस ब्रिज पार्टी में जो है वो नवाब बहादुर इनवाइट होते हैं। वो भी एक कैरेक्टर है, हमें आगे जाके मिलेगा, उस पे मजीद बात करेंगे। नवाब बहादुर इस पे इंडियन साइड से जाते हैं और आई थिंक महमूद अली या हमीदुल्लाह को, महमूद अली या हमीदुल्लाह इसमें से कोई एक कैरेक्टर भी यहाँ पे हमें मिलता है ब्रिज पार्टी में। लेकिन ये बहुत अनकंफर्टेबल हैं और बहुत डिससेटिस्फाइड हैं कि किस तरीके से हमें ट्रीट किया जा रहा है। और मिसेस मोर और एडीला क्विस्टेड ये सब कुछ देख रही हैं और एडीला जो है वो तो शॉक्ड है एक तरह से, क्योंकि वो तो जो एक इम्प्रेशन लेके आई थी कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश के इंडियंस के साथ किस तरीके से ताल्लुकात हैं, बड़े फ्रेंडली ताल्लुकात हैं। तो उसको ये सब कुछ देखने में यहाँ पर नहीं नजर आता। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फील्डिंग जो है, ब्रिज पार्टी जब फेल हो जाती है तो अब साइरल फील्डिंग, ये एक प्रिंसिपल है लोकल गवर्नमेंट कॉलेज के यहीं पे चंद्रपुर में। और ये अनलाइक अदर ब्रिटिश ऑफिशियल्स, फील्डिंग जो है ये एक लिबरेटेड माइंडेड, एक ओपन माइंडेड इंसान है और ये ओपन है फ्रेंडशिप्स करने के लिए इंडियंस के साथ। तो ये डॉक्टर मिसेस मोर और एडीला और प्रोफेसर गुडबॉल जो है वो एक हिंदू स्कॉलर है इसी कॉलेज में और इसका असिस्टेंट भी है। तो ये इन सबको चाय पे बुलाता है, चाय पे दावत देता है। तो डॉक्टर अजीज के साथ इसकी मुलाकात होती है। ये बताता है डॉक्टर अजीज को कि भाई मिसेस मोर ने स्पेशली जो है वो आपका नाम लिया है कि आपको इनवाइट किया जाए। तो अजीज जो है वो बड़ा एक्साइट होता है कि भाई एक गैदरिंग होगी और एक अपॉर्चुनिटी होगी टू बिल्ड मीनिंगफुल कनेक्शंस विद द ब्रिटिश। तो ये बड़ा एक्साइटेड होता है। ये फिर यहाँ पर आता है और इन सब के साथ गपशप करता है, मिलता है, मुलाकात करता है फील्डिंग के साथ, प्रोफेसर गुडबॉल के साथ जो एक हिंदू स्कॉलर हैं। तो अब यहाँ पर ये मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं कि भाई क्रॉस कल्चरल बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मिसेस मोर जो हैं वो इंडिया के बारे में बता रही होती हैं कि इंडिया जो है वो एक यहाँ पे अजीज असल में इंटरेस्ट शो कर रहा होता है। और जब उसको पता चलता है कि मिस क्विस्टेड जो है, डीला क्विस्टेड, वो रियल इंडिया देखना चाहती है, घूमना चाहती है, तो अजीज जो है पहले उनको अपने घर पे इनवाइट करता है, फिर अचानक से उसको एक एहसास कमतरी का शिकार होता है। वो कहता है कि जिस घर में हम मिस्टर फील्डिंग के घर में बैठे हैं, मेरा घर तो ऐसा नहीं है। बहरहाल हम कहीं बाहर मिलते हैं, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। तो ये कहता है कि हम बाहर, मैं आपको घुमाऊंगा, रियल इंडिया दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये जिक्र करता है मैराबार केव्स का। अब एडिला क्विस्टेड जो है वो बहुत ज्यादा इसमें वो हो जाती है इंटरेस्टेड कि भाई ये क्या है, बहुत क्यूरियस होती है, उसकी क्यूरियोसिटी वो वैसे ही बड़ी पैशनेट है रियल इंडिया देखने के लिए। और इस सारी चीजों में आपको ये चीज देखने को मिलती है कि दिस टी पार्टी सिंबलाइजेज अ मूवमेंट ऑफ होप फॉर क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो वो जो हमने जहाँ स्टार्ट किया था नॉवल कि क्या इंडियंस और ब्रिटिश के आपस में ताल्लुकात या दोस्ती हो सकती है या नहीं हो सकती, तो वो अब आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ी सी होप नजर आएगी टी पार्टी में। और इस तरीके से जो अजीज का कैरेक्टर है मिसेस मोर के साथ, फील्डिंग के साथ जो उसकी दोस्ती है। अब इस टी पार्टी में क्या है कि एक फ्रेंडली और ओपन गैदरिंग होती है। मिसेस मोर, एडिला, अजीज और गॉड बॉल, फील्डिंग के साथ ये सारे लोग आते हैं और एक पोलाइट कॉन्वर्सेशन होती है। मिसेस मोर और अजीज का जो बॉन्ड है वो और मजबूत होता है। एडिला जब पूछती है अजीज से इंडियन कस्टम्स और ट्रेडिशन के बारे में, तो इससे और इनके ताल्लुकात बेहतर होते हैं। सो दिस गैदरिंग रिप्रेजेंट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर एज वेल। A minor cultural misunderstanding occurs when Professor Godball refuses to sing a religious song, reflecting the deep complexities of Indian culture. वो उनसे कहते हैं कि भाई आप कोई हमें इंडियन सॉन्ग सुनाए या कोई पोएट्री वगैरह होती है वो सुनाए, तो वो उसको रिफ्यूज कर देते हैं। दिस इंसिडेंट hints at the challenges that will arise later in the novel due to cultural differences. एडिला अब जो है, एडिला क्वेस्टेड और रोनी हेस्लॉप जो है वो एक कार राइड पे जाते हैं, ड्यूरिंग विच एडिला begins to question her feelings about रोनी and whether she truly wants to marry him कि नहीं। तो अब ये बड़ी डिस्टर्ब है रोनी का जो डिसमिसिव एटीट्यूड है इंडियन पॉपुलेशन की तरफ और एक रिजिड कॉलोनियल उसका जो माइंडसेट है उससे ये बड़े जो है मायूस है। ड्यूरिंग द ड्राइव, उस ड्राइव के दौरान एडिला जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है और देखती है कि इंडियन कल्चर की रोनी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता और वो आपस में जो है वो आर्ग्यू कर रहे होते हैं मुसलसल। एडिला रियलाइज करती है कि हर डिजायर टू एक्सपीरियंस द रियल इंडिया कॉन्फ्लिक्ट
with Roni's belief in British superiority कि मैं तो रियल इंडिया नहीं देख सकूंगी रोनी के साथ रही तो। Despite her growing doubts, Adila temporarily reconciles with Roni। मतलब कि वो अभी कोई अपनी एंगेजमेंट खत्म नहीं करती उसके साथ, लेकिन वो एग्री करती है कि हम अपनी जो मंगनी है या एंगेजमेंट जो है उसको बरकरार रखते हैं। अच्छा, अब रोनी और एडीला की जो एंगेजमेंट है वो अनाउंस हो जाती है, तो अंडरलाइंग टेंशन बिटवीन देम रिमेन्स, ये मौजूद होती हैं क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट है इनका आपस में, कि मैंने आपको बताया कि रोनी हेस्लॉप जो है वो एक ब्रिटिश अथॉरिटेटिव पर्सन है और वो बिल्कुल ऑपोजिट है। एडीला जो है वो बड़ी सॉफ्ट हार्टेड है, बड़ी लवली एक लड़की है, जबकि रोनी उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो एडीला जो है बहुत अनकंफर्टेबल होती है रोनीज एटीट्यूड टुवर्ड इंडियंस के साथ, और एक कैजुअल रेसिज्म ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल सोसाइटी इन चंद्रपुर उसको देखने में मिलती है। तो शी बिगिंस टू रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया। ये कहती है कि ब्रिटिश को इंडिया में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एंड हर ऑन प्लेस इन इट। ठीक है, कि अगर ये यहाँ पे जो ब्रिटिश एक स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर मौजूद है इंडिया के अंदर, पहले तो वो उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देती है, उस पर सोचने लग जाती है। फिर कहती है कि क्या मुझे यहाँ पर सेटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मीनवाइल डॉक्टर अजीज जो है वो फील्डिंग की टी पार्टी अरेंज करते, टी पार्टी से होके आता है। ही क्वेश्चंस वेदर जेन्युइन फ्रेंडशिप बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस इज पॉसिबल अंडर कॉलोनियल रूल। तो चैप्टर में हमें मुख्तलिफ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स मिलते हैं कैरेक्टर्स के, जैसे अजीज का, मिसेस मोर का, एडीला क्विस्टेड का, फील्डिंग का, रोनी। बिलखसूस जो रोनी हेस्लॉप और एडीला क्विस्टेड के जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हमें बज़ाहिर देखने को मिलते हैं। फिर ये एक छोटा सा चैप्टर है अगला। दिस शॉर्ट चैप्टर इज लार्जली डिस्क्रिप्टिव, फोकसिंग ऑन द ऑप्रेसिव हीट ऑफ चंद्रपुर। ये हीट भी सिंबॉलिक है। अनबियरेबल क्लाइमेट इज अ मेटाफर फॉर द ग्रोइंग टेंशन एंड अनईज बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियन कैरेक्टर्स। अब शदीद गर्मी है यहाँ पर पड़ रही है चंद्रपुर में, ठीक है, और ये हीट रिफ्लेक्ट्स द डिसकम्फर्ट एंड अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट दैट आर बिल्डिंग एज द स्टोरी प्रोग्रेस। तो ये हीट इन चीज़ों को सिंबलाइज करती है, वहाँ पे जो टेंशन है, जो डिस्कम्फर्ट है, और जो ओप्रेसिव एटमॉस्फेयर जो है वो मिरर करता है स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप एंड फोर शेडोज द इवेंट्स टू कम। अभी आगे इवेंट्स आने वाले हैं इस तरीके से। सो एज द कैरेक्टर्स बिकम इंक्रीजिंगली अफेक्टेड बाय कल्चरल, रेशियल एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया। तो इन पहले शुरू के इन 10 चैप्टर में हमने क्या देखा कि सीन को सेट किया गया कि कैसे नॉवल का आगाज होता है। उसके बाद हमने देखा डॉक्टर अजीज के कैरेक्टर को उसके दोस्त महमूद अली हमीदुल्लाह के साथ किस तरीके से वो बातचीत कर रहा है कि क्या इंडियंस और ब्रिटिश के बीच में आपस में दोस्ती हो सकती है या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें मिसेस मोर के बारे में नरेटर ने बताया, डीला क्विस्टेड के बारे में बताया, रोनी हेस्लॉप के बारे में बताया, फील्डिंग के बारे में बताया। प्रोफेसर गोडपोल का जो कैरेक्टर है वो एक हिंदी स्कॉलर है, वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। इसमें एक एक छोटा सा सरप्राइज है इन शुरू में, कि मैराबर केव्स जो हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, और मैराबर केव्स में क्या होगा, ये एक सस्पेंस क्रिएट किया गया है अभी, क्योंकि इसका जिक्र तो किया गया है। वो बड़े मिस्टीरियस से केव्स हैं, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होता है, लोगों की क्या परसेप्शन है उसके बारे में, इसके लिए हम अगली वीडियोज़ में डिटेल में बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको जितना हमने पढ़ा है, जितना आपने सुना है, उतना समझ आ चुका होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।